Please have a seat. Good morning, everyone. As we begin today's SRP session, let me share a thought with you. The future begins to those who believes in the beauty of their dreams. With this spirit, let us step forward into today's program with enthusiasm and energy. Our today's guest is our alumni and a bright student of our college. I invite our guest, Principal Sir, Madam, to light the lamp and give floral tribute to Dr. Punjabrao Elias Bhausaheb Deshmukh, Rashtra Sant Tukaroji Maharaj, and our former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi. I request you all to stand in honor of Vidyapith Geet followed by Gaurav Geet.
Thank you everyone. Please have a seat. I ask permission of the chair to start the proceeding. In the first place, I pay my humble homage to our founder, president and first agriculture minister, late Dr. Punjabrao Alais Bhausaheb Deshmukh, Rashtra Sant Tukaroji Maharaj and Savitribai Phule. Today is the last day of SIP 25-26. Today is important day, also known as the Harmony Day. For that, I invite Dr. Jadhav sir for briefing about some Sadbhavna Divas. धन्यवाद मॅम. स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषी मंत्री, आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्थान डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना विनम्र अभिवादन करतो. आपल्या महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर O.S. देशमुख सर, उपस्थित सर्व सन्माननीय प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज 20 ऑगस्ट 2025 अर्थात संगणक क्रांतीचे जनक, आधुनिक भारताचे शिल्पकार, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा जन्मदिवस. आपल्याला माहित आहे की भारतामध्ये अनेक धर्म आहेत, हजारो जाती आहेत, पंथ आहेत, संप्रदाय आहेत. असा विविधतेने नटलेला हा भारत, या भारतामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता नांदावी, सद्भावना नांदावी, यासाठी म्हणून आजचा हा जो दिवस आहे हा राष्ट्रीय सद्भावना दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मी आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर O.S. देशमुख सरांना आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी भारतरत्न राजीव गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून अभिवादन करतील. थँक्यू. A sapling signifies growth, life and sustainability. To make our green welcome, I invite Dr. O.S. Deshmukh sir to present a talking tree sapling to our esteemed guest. Thank you, sir. I request Professor Gunjati sir to welcome our principal, Dr. O.S. Deshmukh sir, by offering talking tree sapling. Now I request Dr. Vanjari sir to welcome Professor Bobre sir by offering talking tree sapling. Thank you, sir. I invite Dr. Asfiya Sheikh Madam to welcome SIP convener Professor Ghunmode Madam by offering talking tree sapling. Thank you, madam. Behind every name is a story of dedication and excellence. To narrate the remarkable journey of our guest, and I request Dr. Kinika Madam to introduce our beloved student, bright alumni and today's chief guest to the gathering. Good morning, one and all present here. It's our honor to welcome our esteemed alumni, Mr. Vishal Kharechwal, for today's third day of student induction program. Vishal, you are the shining star of our college and your achievements have made us proud. Vishal Kharechwal is a distinguished individual who has achieved numerous accolades in academics, literature and social service. Some of his notable achievements include he has
completed his graduation in biotechnology and post-graduation in MSc in chemistry from our college. He has awarded the overall Best Student Award in Academics, Cultural, Sports and Leadership by Rashtrasant Tukadoji Maharaj, Nagpur University, Nagpur. He was also awarded the Best Student Award by Microbiology Society of India. Vishal received the National Samaj Seva Ratna Award presented by our Transport Minister Shri Nitinji Gadkari sir. He also received Maharashtra Youth Idol Samaj Seva Ratna Award from Nagpur Police Commissioner Amitesh Kumar. Vishal was honored with Sahitya Sevi Award for his literary contributions, including numerous self-composed poems and writings. He was awarded the Yuva Kavi Award by Vidarbha Sahitya Sammelan. Vishal has participated in over 300 debates and elocution competitions, winning numerous awards and is a skilled orator. He has represented Nagpur University at national and international platforms, winning first positions. Vishal has represented Nagpur University at very prestigious universities across India, including Gujarat University, Bangalore University, Banaras Hindu Vidyapeeth, then Jawaharlal Nehru University and Mumbai University. He has studied scriptures and he is well versed in Sanskrit and grammars. Recently, Vishal won the first prize in Maharashtra and represent the state in Indian Parliament in Delhi, delivering an unforgettable speech. Currently, Vishal is engaged in teaching and guiding the students with full dedication. Notably, Vishal achieved all these accomplishments at the age of 23 and is still only 25, continuing to receive numerous accolades. So I request Vishal, share your success stories and your views with our students. Please Vishal. या कुन्देरतुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताम्बता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निश्चैषजाड्यापः। माँ सरस्वती के चरणों में अभिवादन करते हुए हमारे संस्था के अध्यक्ष रहे और हमारे को फाउंडर रहे, हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय श्री पंजाबराव भाऊ साहब देशमुख के चरणों में वादन करते हुए आज सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के चरणों में वादन करते हुए और हमारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के चरणों में वादन करते हुए आज के इस पावन दिवस की शुरुआत के साथ मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। आवाज आखिरी तक आ रही है? आ रही है क्या? नहीं, मेरे को तो तुम्हारी नहीं आ रही। आ रही है? यहाँ आ रही क्या? अरे आ रही क्या? हाँ आ रही है। देखिए, आपको यहाँ पे भाषण देने के लिए मेरा उद्देश्य नहीं है, आपसे मैं सिर्फ कुछ साझा करने के लिए आया हूँ। आपने कल 2 दिन अच्छे से भाषण सुना है और उसमें भी आप 2-2, 3-3 घंटे के सेशन सुनते आ रहे हैं। आज मैं आपको फिर से वही भाषण सुनाऊं लंबा चौड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और ना यहाँ कोई बैठा हुआ उसमें होगा। आपसे वही चर्चा करूंगा, आपसे वही साझा करूंगा जो आपके दिल में है और जो मेरे दिल में है। आपसे संबंध वही बनेगा जहां पर हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संबंध हमारी वैचारिकता से यानी बौद्धिकता के स्तर से उतरकर हृदय की स्तरता पे आ जाएगा, तभी आपसे मेरी भाषा, मेरा संबंध, मेरा वक्तव्य आप तक पहुंचेगा। देखिए, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जिसे आप लोग आज देख रहे हैं, लगभग यहां सब फर्स्ट ईयर के ही होंगे,
कुछ यहाँ पे जो काम करने वाले बेचारे जो अभी वॉलंटियर बने हैं ये सेकंड थर्ड ईयर के होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये भूमिका निभाई है। आपने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम पहली बार देखा है इस कॉलेज में, और आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपका ये तीसरा दिन होगा इस स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को देखने का। मैंने इसे 5 साल कंडक्ट किया है, जब फर्स्ट ईयर से लेके हम एमएससी के फाइनल ईयर तक इसकी एंकरिंग, इसकी व्यवस्था, इसकी जितनी व्यवस्थापना होती थी ये हमने देखी है। तो मुझे पता है पहले दिन क्या होता है, फिर दूसरे दिन क्या होता है, फिर तीसरे दिन क्या होता है, और तीनों दिन में बच्चों के मन में क्या होता है ये भी मुझे भलीभांति अच्छे से पता है कि आपके मन में क्या है। देखिए, आपने पहले दिन कुछ सुना होगा करियर ओरिएंटेशन के बारे में कि लाइफ को कैसे जिया जाए, कैसे अपने आप को अच्छा बनाया जाए, क्या किया जाए। आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने मोटिवेट हुए, आपने स्वीकार किया। आपने अगले दिन भी वही सुना होगा। पर यहां पर अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी चेयर्स खाली हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। ये अभी बस थोड़े रुकिए, आप 3 बजने दीजिए। यहां पैर रखने की जगह नहीं होगी, मार मार के फैलाना पड़ेगा कि बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वाले भी घुसेंगे, क्योंकि वहां पे कल्चरल प्रोग्राम होगा अभी थोड़ी देर के बाद में, और उस कल्चरल प्रोग्राम में बैठने के लिए यहां सीट नहीं मिलती, नीचे बैठे हुए लोग भी मिल जाएंगे आपको, बस थोड़ी देर आप वेट कीजिए। पर इसलिए है वो क्योंकि वहां पे हमें लगता है कि हमें कुछ देखने को, सुनने को, आनंद लेने को ऐसी चीजें मिलेगी, इसलिए वहां भीड़ मचती है। और यहाँ पे सोच के हम ये आए कि यहाँ तो भाषण सुनने को मिलेगा और भाषण सुन के होने वाला कुछ नहीं है। तो इस भाषण से आपका बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये भाषण नहीं है, ये वो बातें हैं जो इस कॉलेज में आपको रहते हुए आगे के 3 साल बहुत मदद करेगी। कहा जाता है कि हम कोई रास्ते को पार करते हैं तो रास्ते में मील का पत्थर दिखता है। बताएं मील का पत्थर क्या होता है? हम जब कोई रास्ते पे जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर लगे होते हैं ना, 20 किलोमीटर लेफ्ट, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, उसको बोलते हैं मील का पत्थर। हर मील पे एक पत्थर लगा होता है, उसको बोलते हैं मील का पत्थर। और जैसे जैसे हम किसी रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो मील का पत्थर हमें बताता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बस वही है, उस रास्ते पे जिस पे आप चल रहे हैं और जिस पे आगे आपको 3 साल चलना है, उस रास्ते को मैं पार कर चुका हूं। इसलिए आने वाले क्या हिंड्रेंस होंगे, क्या तकलीफें और क्या अच्छाइयां हैं, वो आपको बस इस थोड़ी देर के भाषण में प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आप 3 साल में वो इस कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी प्राप्त ना हो। इसलिए इसको अवश्य सुनिए। और अगर हो सके तो आपके जिन फ्रेंड्स बाहर कैंपस में घूम रहे हो, कैंटीन में घूम रहे हो, तो एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर दीजिए कि आ जाइए भाषण सुनने के लिए। तो इसी के साथ आपको मैं संबोधन दे रहा हूं। मैम ने, जैसे किनीकर मैम ने कहा कि अपने बारे में कुछ बताइए, जिस कॉलेज से यहां प्रारंभ हुआ। तो अगर मैं अपने बारे में शुरुआत करूं और उसके बाद आपके गाइडेंस पे आऊं, तो मैं आपसे कहूंगा मैं 2018 में यहां आया था। 2018 में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ। 2018 के जून जुलाई का जो मंथ चलता है, अगस्त वाला, इसी मेरा एडमिशन हुआ। और 2018 से लेकर 21 तक मेरा ग्रेजुएशन, और 21 से 23 तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन इस कॉलेज से रहा। अगर मैं कहूं मैं इस कॉलेज में जब आया तो जिस कंडीशन में मैं आया था, लगभग मुझे लगता है यहां बैठा 80% विद्यार्थी उसी कंडीशन से आया होगा। बीएससी में एडमिशन, वो भी शिवाजी साइंस कॉलेज में। अच्छा, सीएमबीटी वाले कितने हैं? सीएमबीटी वाले कोई है यहाँ पे? अलग अलग हो गया, मेजर हो गया है तो बंद हो गया है। हमारे टाइम पे सीएमबीटी अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे। बायोटेक्नोलॉजी कितनों का है? माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री तो सबका ही होगा, अधिकतर लोगों का। केमिस्ट्री अरे कम लोगों का है। तो एक ये था कि जिस समय हम लोग यहाँ पे आए तब एक ग्रुप हुआ करता था इस कॉलेज में, उसका नाम था सीएमबीटी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये ग्रुप। और इस कॉलेज के टॉप मोस्ट ग्रुप में उस ग्रुप का नाम आता था, क्योंकि वहां पे एडमिशन लेने के लिए रैंकिंग ज्यादा चाहिए थी और फीस भी ज्यादा थी उस टाइम पे उस ग्रुप के लिए। और बच्चों में होड़ होती थी कि हमको सीएमबीटी में ही जाना है। फिर वहां से बचते थे तो फिर यहां, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां। ये नागरिक बायोटेक्नोलॉजी बोलकर लगभग नागपुर में कुछ 2-4 ही अच्छी कॉलेजेस है, उसमें शिवाजी साइंस कॉलेज प्रतिष्ठित प्रथम श्रेणी में आती है। और उसमें एक क्रेज होता है विद्यार्थियों में। और वो कौन आते हैं अधिकतर? देखिए, बीएससी, जिस समय मैं अपनी बात बता रहा हूं, बीएससी में एडमिशन लेने के 2 कारण होते हैं। एक व्यक्ति का खुद का मन हो, जिसको पता हो मुझे साइंस में ग्रेजुएशन करना है, बीएससी से ग्रेजुएशन करना है, मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, फिर टीचिंग प्रोफेसरशिप में जाना है या रिसर्च में जाना है। वो व्यक्ति जिसका पहले से निश्चय हो। और ऐसे निश्चय रखने वाले विद्यार्थी मात्र 20% होते हैं। यहां आते कौन है? एक्सीडेंटल स्टूडेंट्स। तो समझिएगा, ये थोड़ा कटाक्ष लग सकता है, संपूर्ण भारत की स्थिति यही है। बीएससी, बीए, बीकॉम, फिर ये जितनी डिग्रियां हैं, ये एक्सीडेंटल स्टूडेंट्स हैं। क्यों? इनका उद्देश्य था जेई, नीट
और जिसको नीट नहीं निकला वो चला बीएससी करने, और जिसका जेई नहीं निकला वो सोचता है या मैथमेटिक्स में कुछ कर लूं या फिर फिजिक्स में कुछ कर लूं। ये एक इमेजिन बन जाता है विद्यार्थियों के मन में। पर साहब ये गलत विचारधारा है। आपकी सबसे बड़ी चूक है कि अगर आपको लगता है कि मैंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया, पर्टिकुलर पोजीशन मैंने वहां पे अटेन नहीं कर पाई, तो मैं फेलियर हूं, और मैं फेलियर के साथ में कुछ जो मिल गया मैंने प्राप्त किया, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको नहीं पता आपके जिंदगी के पन्ने की अगले किताब, जो किताब चल रही है आपकी जिंदगी की, उसके एक पन्ने में यहां पे आपको अटकाया गया, आपके अगले पन्ने में क्या लिखा है आप नहीं जानते, और मैं भी नहीं जानता था जिस समय मैं आया। मुझे 2018 में मैंने नीट दिया है, मेरा 2018, हाँ मेरा 17 से 18 में 12 था, और 18 में मैंने नीट दी है, और मुझे 510 थे, पर मेरा नंबर नहीं लगा, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था जिसमें मुझे जाना था, मुझे लगा नहीं। मैं सोचा रिपीट करूंगा, रिपीट में फिर हुआ नहीं। पर उस चीज को छोड़ के मैंने बीडीएस या बीएचएमएस या इस कोर्स में प्रवेश नहीं किया। मैंने सोचा था कि रिपीट करूं, तब तक एक डिग्री और करेंगे बीएससी, तब तक मैंने एडमिशन ले लिया था। पर मुझे नहीं पता था ये बीएससी की डिग्री जब मैं उसमें प्रवेश करूंगा, इसके साथ रहते हुए शायद मेरा एडमिशन किसी मेडिकल कॉलेज में उस समय हो भी जाता, अगर मैं थोड़े 50 नंबर आगे बढ़ जाते, मेरे 40-50 नंबर, तो शायद एडमिशन हो जाता था उस टाइम पे। उस समय उतना कट ऑफ नहीं हुआ करता था। अगर हो जाता तो आज शायद किसी मेडिकल कॉलेज में मैं भी बैठा होता, और शायद अपना एक क्लिनिक खोल के कहीं काम कर रहा होता, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं कि मेरा बहुत बड़ा अस्पताल खुला हो जिसको मैं संचालन कर रहा हूं। खुद के बलबूते भी काम करना होता है, उसमें भी बहुत मेहनत होती है। आज पता चलता है कि कुछ फ्रेंड्स उस फील्ड में हैं, वो बताते हैं कि साहब सिर्फ सोचने की बात है कि एमबीबीएस हो गए तो मजे ही मजे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका जेई आईआईटी क्रैक हो गया सिर्फ मजे ही मजे हैं। हर फील्ड में संघर्ष, हर फील्ड में आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, आप प्रयत्न करने की क्षमता रखते हैं, आप जहां लात मारेंगे वहीं से पानी प्रकट होगा। बस आप में सामर्थ्य होगा तो। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से मैंने शुरू किया था, और यहां पे बैठा हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट उस कहानी से कोरिलेट कर पा रहा होगा अपनी कहानी को। क्यों कर पा रहा होगा? क्योंकि जब 11th-12th में हम लोग आते हैं, और यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं उनने 11th-12th में साइंस लिया है, तब तो यहां बैठे हैं। या जिन्होंने कॉमर्स लिया होता वो तो यहां नहीं आते, जिन्होंने आर्ट्स लिया हुआ वो तो यहां नहीं आते, उन्होंने साइंस लिया था। और साइंस लेने के पीछे दो ही कारण बचते हैं हमारे देश के अंदर, कि एक विचारधारा बनी है, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा कुछ नहीं था, दुनिया खत्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने कल या परसों में भाषण सुना होगा, हमारे यहाँ पे एक आईपीएस महोदय आए हुए थे, मुझे जानकारी जहां तक प्राप्त हुई, अगर आप देखेंगे इस देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर सेक्टर है, जो अलग सेक्टर है, उसमें आपकी स्किल्स, आपके ज्ञान का एक आवरण हुआ करता है। पर हमारे मन में एक फिलॉसफी बैठी हुई है, हमारे घर परिवार में बैठा हुआ है, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अगर मैं दूं आपको, जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर। आप साथ में पढ़ने जा रहे थे, आपने देखा कि आपका साथ वाला दोस्त किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपने भी शुरू कर दी, अच्छी बातें करी, आपने तैयारी शुरू करी, पर आपका लक्ष्य नहीं था। आपने देखा वो कर रहा है तो मैं भी करूं, वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ये कर रही है तो मैं भी करूं, ये करेगी तो मैं भी करूं। इसके साथ चलते हुए आपने आपका जो सेल्फ मोटिवेशन है, आपका जो एक प्रामाणिकता, आपका इंडिविजुअलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी स्वयं की एक प्रतिभा है, आपने उसको दबा दिया। आप 12th निकाले, आपने 12th में अच्छे परसेंटेज से पास किया, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा, आपको वहां नहीं मिला, आप बीएससी करने आए। अब बीएससी करने आप लोग आ गए, तो किसी किसी के मन में यह होता है कि बीएससी के बाद क्या होगा, ये बीएससी क्या है। तो इसमें प्रवेश करने के पहले मैं अपनी उस बात से ही शुरू करता हूं जहां पे मैं रुका था, कि बीएससी 2018 कौन सा कटरा 18, अच्छा 2018 नहीं, मुझे लगा वैष्णो देवी तो नहीं ले जा रहा कटरा बोल के। तो 18 जिस 18 में मैं यहां आया, मेरा जिस दिन पहला दिन था कॉलेज का एडमिशन ले रहा था, उस दिन इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर रिटायर्ड हो रहे थे, जिनका नाम था गुरघाटे सर। मैं जिस दिन पहले दिन आया था और मैं एडमिशन के लिए जगह ढूंढ रहा था कि कहां से कहां क्या होता है, जानकारी थी नहीं। अब तो बहुत कुछ प्लेटफॉर्म बन गया, ऑनलाइन चीजें हो गई, ये हो गई। हमारे टाइम पे तो 2018 तक इतना नहीं था ऑनलाइन का सिस्टम। जहां तक होता था कि फॉर्म भरिए और कम्युनिकेट कीजिए ही काम था 17-18 के आसपास तक। और मैं इसी हॉल के बाहर घूमते हुए आया हूं कि किसी ने बताया यहां पे एडमिशन चल रहे हैं, तो हो रहे कहीं और थे। तो मैं यहां तक पहुंचा हूं, पहला दिन है मेरे कॉलेज का, मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरा जो मेरिट लिस्ट लगती है फर्स्ट वाली, उसी में नाम था। तो मैं आया, मैं यहां पे खड़ा हूं, बाहर देख रहा हूं, और यहां पे सर का रिटायरमेंट चल रहा है। तो मैंने अपने टाइम पीरियड में, जिस समय तक मैं यहां रहा हूं, मैंने उन 5 सालों में 3 प्रिंसिपल सर देखे। 3 प्रिंसिपल सर 5 साल में बदले हैं इस कॉलेज में।
क्यों? पहला मेरा जो पहला दिन था सर, उस दिन दुर्घाटे से रिटायरमेंट हुआ और उनके जाते बराबर चांदेकर सर ने 4 लिया, जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के ही जो एचओडी हुआ करते माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी के, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने 4 लिया और लगभग उन्होंने एक आध साल करीबन 4 संभाला। उसके बाद भूरे सर जो थे हमारे आदरणीय, उन्होंने 4 संभाला। और सर से तो हमारा परिचय धनवटे कॉलेज के साथ में ही है, क्योंकि सर वहां के प्राचार्य थे और तब से सर के साथ हमारा परिचय है। और सर के ही कॉलेज में, धनवटे कॉलेज में एक कार्यक्रम में मैं जज बन के गया था वहां प्रोग्राम में, तब सर से मुलाकात हुई थी। पर यहां मैं बोलना चाह रहा हूं कि जिस समय मैं आया तो मैंने इस कालखंड में देखा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे चल रहा है। एडमिशन हो गई, अब एडमिशन होने के बाद पता चला यहाँ तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अभी तक तो ये पता था कि भाई स्कूल कॉलेज में जाते थे जहां पे एक क्लास होती थी, क्लासरूम में जाके बैठना है, अपना टेबल है, अपनी चेयर है, 4-5 दोस्त है, अपने सखी सहेलियां सब बैठे हैं, सखा है, सहेलियां हैं, सब हैं, उन सब गप्पे लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। यहाँ तो पता चला कोई क्लास ही फिक्स नहीं है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। अब यहां से निकल के वहां और वहां से निकल के यहाँ, ये करते करते आधा घंटा निकल जाए और जब तक पीरियड हो जाए खत्म, और जब तक क्लास में पहुंचे तब तक प्रेजेंटी चल रही है। और प्रेजेंटी की सीएमबीटी वालों की, जहां 120 बच्चों की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अब नाम लेना चालू हुआ और सरनेम से पुकारते हैं, ये प्रेजेंट, तू क्यों नहीं आली होती कल, कशा नहीं आली, तो कशा आला, ये करते करते फिर 15 मिनट और हो जाए, तो फिर वहां से निकले फिर वहां भागे। तो एक तरीके से कॉलेज में सेटअप होते होते ही कम से कम 1 महीना लग गया कि दिमाग को लगे कि हम कहां पे कैसे कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था है। क्योंकि तब वो डी ब्लॉक जो आप देखते हैं, काली बिल्डिंग, वो काली खिड़कियों वाली उधर की, वहां पे भी कुछ क्लासेस हमारी होती थी। और यहाँ की जो पूरी बिल्डिंग टूट चुकी है, पहले वहां पे भी क्लासेस होती थी। वहां पे आप जैसे 3 इडियट पिक्चर में देखे होंगे ना, वो क्लासेस होती हैं ऐसी ऐसी, ऊपर बैठने के, नीचे बोर्ड होता है, वो वाली क्लासरूम्स वहां पे थे। वो बिल्डिंग पुरानी हुई थी, उस समय हमारे समय भी टूट चुकी थी वो, तो वहां पे भी हमारी क्लासेस होती थी। और सी ब्लॉक तो फेमस ही है, वहां पे तो सारी क्लासेस अब तो आप लोगों की वहीं होती होगी। तो ये भागा दौड़ी, जद्दोजहद, यहां से वहां, वहां से यहां, पता ही नहीं चलता। और जिस दिन पहले दिन यहां आना हुआ कॉलेज के एडमिशन के बाद में, तो दरवाजे पे ही, गेट के पास ही पता ही नहीं जाना कहाँ है, टाइम टेबल आने का था, आ तो गए, जाएंगे कहाँ। तो बस हमको पता था लैंग्वेज डिपार्टमेंट वाले बाहर खड़े थे, कोई है लैंग्वेज डिपार्टमेंट से, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। तब वहां पे हमारे हिंदी को पढ़ाने के लिए चांडक मैडम हुआ करती थी, उस समय द्विवेदी मैडम वहां के एचओडी थे। तो इंग्लिश वाले इधर आओ, हिंदी वाले इधर आओ, मराठी वाले इधर आओ, जिनके अलग अलग सब्जेक्ट थे, और जैसे सप्लीमेंट्री इंग्लिश, अभी भी ऐसे विषय होंगे शायद आप लोगों को चॉइस में, हिंदी सप्लीमेंट्री इंग्लिश और मराठी। तो इधर आओ। तो पहला क्लास पहले दिन हमारी इसी चीज की हुई कि हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश बस पढ़ा, जो चैप्टर था, और रॉजर करके कोई चैप्टर अगर आपका इंग्लिश में होगा, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, या सिलेबस चेंज होगा तुमसे नहीं पता, तो हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद पहला दिन चालू हुआ। और उस कॉलेज के पहले दिन से मैं अगर अपनी बात कह रहा था कि मैं पहले दिन जब आया, उसके 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, वही घटना बता रहा हूं। और मैं कहीं वही पीछे की लाइन में, जहां बच्चे बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं आपस में, वो लड़के जितने बैठे हैं आखिरी में, वो जो देखो दांत दिखा रहा है वो पीछे वाला, तो वो जहां बैठे हैं वहीं हम भी बैठा करते थे। सामने कौन बैठता है भाई साहब, मुझे तो पीछे बैठने का है। तो पीछे जो डब्बे खुलते हैं बैठे बैठे, और डब्बे खुल के मैगी खा ली जाती है, कचौड़ियां समोसे खा लिए जाते हैं, तो पीछे से आगे पता ही नहीं चलता। तो पीछे और बैठने वाले हम भी थे, पीछे बैठ के असली मजा आता था, पीछे जाता था, तो पीछे बैठते थे। अब मैं वो बात तो आपसे कहूं कि उसी पीछे बेंच पर बैठकर, उस लास्ट सीट पर बैठ के अपने दोस्तों के साथ, जिसको अगर हम अपनी भाषा में कहें चकल्लजबाजी जिसको कहा जाता है, हंसी ठिठोली जिसको कहा जाता है, वो करते बैठे थे। और आज 5 साल से 6 साल के बाद में उसी कक्षा में, उसी कॉलेज के अंदर मंच पर बैठकर आपको उद्बोधन देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात समझता हूं कि उस सीट से पीछे से निकल गए इस मंच तक पहुंचने की यात्रा मेरी यात्रा नहीं है। इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ विशाल खरचवाल, ये जर्नी है शिवाजी साइंस की मुझे दी हुई। ये कॉलेज एक प्रतिष्ठा है, एक ब्रांड है। अगर आपको ब्रांड को समझ पाए, ये एक नाम है जिसकी खासियत इतनी है कि जिसके आगे बड़े बड़े आप सिर्फ शिवाजी साइंस कॉलेज के नाम से प्रेजेंट होइए किसी कॉलेज में, आपको अलग रिस्पेक्ट मिलती है। मैं इसका उदाहरण हूं, मैंने लगभग ऐसी कोई कॉलेज नागपुर की नहीं छूटी होगी जहां पे शिवाजी साइंस कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। मैं डिबेट्स में, मैं इलॉक्यूशंस में, मैं क्विज कॉम्पिटिशंस में और कुछ सेमिनार्स में हमेशा ही भाग लेते रहा। मेरा अधिकतर फोकस तो डिबेट और इलॉक्यूशन में रहा। मैं जहां रिप्रेजेंट करने गया और जहां पे मैं अपना वक्तव्य चालू करता था और जहां मैं बोलता था कि सुप्रभात में विशाल राजकुमार खरचवाल शिवाजी साइंस कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हुए, ये मेरा शुरुआत होती थी। और जहां शिवाजी साइंस कॉलेज का नाम आता था, तो नाम सुनते ही जो लोग सामने बैठे थे उनके चेहरे पे अलग मंद मंद मुस्कान आती थी।
क्योंकि कॉलेज की एक नाम है, प्रतिष्ठा है, और एक नाम अगर प्रतिष्ठा है तो नाम की प्रतिष्ठा के पीछे समर्पण है भाऊ साहब देशमुख का, उनकी ये संस्था का। और मैं आपसे कहूंगा, जिस संस्था में बैठे हैं अधिकतर बच्चे भाऊ साहब से परिचित नहीं होंगे। मुझे इसलिए आवश्यक लगा इस विषय को यहां छेड़ना, क्योंकि जिस समय हम भी आए थे हमें भी जानकारी नहीं थी। हमें लगता था जैसे अन्य संस्थाएं खुली हुई है, कोई बंजारी कॉलेज खुला है, कोई ये कॉलेज खुला है, कोई वो कॉलेज खुला है, ऐसे 50 कॉलेज है नागपुर में, आप कहीं जाइए। तो जब आप यहां आते हैं, इस कॉलेज में आप पहुंचते हैं, इस कॉलेज में भाऊ साहब देशमुख किस कॉलेज में आप पहुंचते हैं, तो आप जब जानेंगे कि उनका क्या योगदान था, तो आपको पता चलेगा ऐसा व्यक्तिमत्व पूरे भूमंडल में हमारे भारतवर्ष में एक बिरला ही को हुआ करता है, जिसने अपनी पूरी संपत्ति, अपना पूरा सामर्थ्य केवल विद्यार्थियों को और छात्रों को समर्पित कर दिया। एक एजुकेशन देने के लिए सबसे कम मूल्यों में बड़े से बड़े एजुकेशन प्राप्त करना इस संस्था में संभव है भाऊ साहब देशमुख के कारण। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप जान पाएंगे कि इस कॉलेज को आपको किस प्रकार से आप इस कॉलेज में प्रगति कर पाएंगे। बहरहाल इसी कॉलेज के उसी दिन से प्रारंभ करते हुए जहां मैं पहुंचा था कि वो दिन बीता, और दिन बीतने के साथ धीरे धीरे हमारी एक जो ग्रुप बना हुआ था, अभी नए नए बच्चे थे, सब आपस में जानते नहीं थे, नई नई फ्रेंडशिप हो रही थी, नई नई दोस्ती होती है, आप लोगों की हुई हो रही होगी। इस नई नई दोस्ती की शुरुआत में कुछ दिन की चलती है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। ये 2 महीने चलने वाले टोले जो झुंड बनेगा ना, अभी 2 महीने चलने वाला, ये चौथे महीने गायब हो जाएगा, और छठवें महीने और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते मूवी नहीं देखते हैं कई बार, तो ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए अपने मित्रों को परख के चुनिए, क्योंकि जो आपको सही मार्गदर्शन दे, आपका सही गाइडेंस करे, मित्रों का चयन करते समय सटीक हो जाया कीजिए। क्योंकि आप देखेंगे जिन्हें आप 12th में, जिनके साथ आप पढ़ते रहे, जिनके साथ आप होंगे, आजकल आप उनको नंबर पे भी कई लोगों ने ब्लॉक किया होगा, आप उनसे बात भी नहीं कर पाते होंगे, एक समय आएगा जिनसे मुलाकात भी नहीं हो पाती होगी। ये स्थिति आगे की होती है। इसलिए आपको मित्रता करते हुए फोकस रहना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, और हमारा संबंध किस तरीके से हो पाएगा इस क्षेत्र के लिए। बहरहाल इस कॉलेज में दिन बीतने के साथ, समय बीतने के साथ CMBT ग्रुप टूटा, क्योंकि 120 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, एक सब पढ़ाना संभव ही नहीं है, इतनी बड़ी क्लासरूम हुआ ही नहीं करती है, तो 60-60 बच्चे अलग अलग हो गए, और 60-60 बच्चे अलग अलग हो गए। उस फर्स्ट ईयर की बैच में अगर मैं अपने तरफ से कहता हूं तो केमिस्ट्री लैब में ही एक जगह थी जहां पर खड़े होने के लिए इतने सारे बच्चों को जगह हुआ करती थी, जो इधर वाली लैब हुआ करती है, आप बड़ी लैब देखते हैं केमिस्ट्री की, वहां पे आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल्स करना, प्रैक्टिकल्स करके लेक्चर्स करना, और लेक्चर्स करते हुए समय बीतते चले जाता है, और ये समय बीतने के साथ कब 4 बज जाते थे। आपकी कॉलेज कितने छूटती है? 4 बजे। हमारी तरफ से 4, कभी 5 प्रैक्टिकल कभी लेट हो गया, रिजल्ट नहीं आया तो 5 ही बजते थे, 5:30 ही बजते थे रिजल्ट निकालते निकालते प्रैक्टिकल से। तो ये टाइम बीतते चले गया, और ये टाइम बीतने के साथ मैं कह रहा हूं कि ये टाइम के साथ मेरे मन में जिज्ञासा थी, और कहते हैं कि क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा ही आपके अंदर प्रगति को जन्म देती है। अगर आपके अंदर चेतना नहीं है, जानने की लालसा नहीं है, वेद में कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है, वेद का उपवाक्य कहा जाता है, यथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा चाहिए, तभी आप ब्रह्मर्षि या आप एक ब्रह्म के अंश बन सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट यहां से लागू होता है, आपको साइंस को जानने की जिज्ञासा चाहिए होगी, आपको विषय को जानने की जिज्ञासा चाहिए होगी, तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। और वही जिज्ञासा थी मेरे मन में, एक छोटी जिज्ञासा। 18 साल का लड़का, 2018 मेरी 2000 का जन्म है, तो 2000 से लेकर 2018 में थोड़ा 18 साल का। अब मैं जब उस कॉलेज में आया हूं, इस कॉलेज में आया हूं, तो मेरे मन में एक था कि किसी ने बताया कि एक कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है, जहां पे मॉडल्स बनाने हैं, साइंस रिलेटेड नहीं, ऐसे कुछ मॉडल बनाने हैं। तो मेरे मन में एक था, किसी ने मुझे बताया था कि सिट्रिक एसिड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उसमें जानकारी नहीं थी। अब किर्चॉफ्स लॉ ये सब मुझे उस समय उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं उसको सिर्फ एक अंदाजा लेके बैठा था कि किस तरीके से होता है, और अनुमाने सर यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के पास गया था इस काम के लिए। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मेरा संबंध फिजिक्स से कुछ भी नहीं था, और मैं सर पढ़ा रहे थे अपनी क्लास में, उनके पास जाके पूछता हूँ, सर मुझे इलेक्ट्रोड चाहिए, कैथोड और एनोड, मुझे एक बार करके देखना है, मुझे एक बार इसका प्रैक्टिकल की होता है क्या। तो सर ने मुझे पूछा था कि आपने किर्चॉफ्स लॉ पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है, आपने वो पढ़ा, क्योंकि पहले पढ़ के आओ उसके बाद आप करिए। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये चीज नहीं होती है, उसको मैंने सुधारा, बाद में उनसे कांटेक्ट किया था, उनका मार्गदर्शन मिला। तो मैं कहूंगा कि आप केवल जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट तक सीमित मत होइए। मैं जिस डिपार्टमेंट तक था मैं वहां तक सीमित नहीं रहा, मैं बॉटनी में भी जाता था, मैं जियोलॉजी में भी जाता था, मेरा मैथमेटिक्स में भी जाना होता था, मेरा फिजिक्स में भी जाना होता था। मैं जिस डिपार्टमेंट में था वहां से निकल के पूरी कॉलेज देख चुका हूं मैं।
इससे फायदा ये होता है कि आपको कुछ चीज जाननी है, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ चाहिए आपका, अगर वहां पे आप उन टीचर से बात करते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं, तो आप उनको गाइडेंस मांगने जाएंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे और अच्छे से ट्रीट करके देंगे। आपका बहरहाल ये विषय होना चाहिए कॉलेज में केवल हमें क्लासरूम से निकल के भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आना है। और देखिए, आप कॉलेज में आए हैं, बीएससी चालू किया है, आपका जो जो विषय है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, जो विषय होगा, स्टैटिस्टिक्स, जो विषय होगा, यहां पे आप लोग पढ़ रहे हैं। उस विषय को पढ़ते हुए आपको एक ध्यान देना है कि इस कॉलेज में आपको जितना लेक्चर के माध्यम से शिक्षा मिल जाएगी, उतना आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको गेन करना है, प्रैक्टिकल से एक्सेप्ट करना है। और मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट ईयर है, अगर आप सिर्फ अपने लेक्चर्स पे ही ध्यान दें और थोड़ा सा जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें, आपको ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। जो बच्चे अभी आप देखेंगे कुछ फर्स्ट ईयर में ट्यूशन लगाने लग जाते हैं, बीएससी ट्यूशन लगाते हैं बच्चे, यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स में और प्रैक्टिकल पे फोकस करें इस कॉलेज में, तो ये आपके लिए एक तरीके से फायदेमंद चीज साबित होती है। बहरहाल इससे आगे निकलते हैं। तो इस कॉलेज के अंदर एक मैं आपसे कहूं तो एक नोटिस बोर्ड होता है, अगर आप लोग देखते होंगे, कितने बच्चे देखते हैं उसको रोज? कोई देखता है क्या? कि बस जाते हुए बस नोटिस बोर्ड है, कहां पता है? कहां है? सामने कहां पे, कोई बताएगा? किसी को पता है नोटिस बोर्ड कहां है? किसी को पता ही नहीं। कितने दिन हो गए कॉलेज में आपको? जहां पे हमारा सारे नोटिस लगते हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑफिस के साइड में, उस साइड में भी है, और जहां पे फीस भरते हैं, जहां पे हमारा क्लर्क ऑफिस है, उसके अपोजिट में बाहर साइड में जहां पे कॉरिडोर बना हुआ है, वहां सारे नोटिस लगते हैं। और अगर आप उस नोटिस बोर्ड को रेगुलर चेकअप करेंगे, रेगुलर वहां पे जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, तो आपको अनेक एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा जो हमारी कॉलेज में कंडक्ट होती है और हमारे कॉलेज के आसपास से जिससे हमें निमंत्रण आता है, आप उससे अपडेट रहेंगे तो। और मेरा एक काम फिक्स था कि जब मैं कॉलेज आता था, पहले घूमते फिरते पहले नोटिस बोर्ड देखता था, आज नोटिस बोर्ड पे क्या है पता चल जाता था कि क्या है क्या नहीं, अपडेट लेके चलिए। और ज्यादातर ऐसी चीजें होती है, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आता, आप नोटिस बोर्ड से कनेक्ट रहिएगा। आज जब आप नोटिस बोर्ड से कनेक्ट रहते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या क्या हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, क्या कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा कोएक्युलर एक्टिविटीज हो रही है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और मैं आपसे सीधा कहूं, अगर केवल पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा तो आप गलतफहमी में हैं। आपका सर्वांग विकास करना आपको अत्यंत आवश्यक है, जिसको कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। केवल पढ़ाई कीड़ा बनना, या कह लीजिए किताब को जिसको कहते हैं ना चाट लेते हैं जो बिल्कुल कंठस्थ करके, वो करने से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। तरीका यह है कि आपके अंदर एक चरित्र का निर्माण, जिसको कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं, वो कैसे होगा? तो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं हमारे अंदर का, जिसे चरित्र निर्माण कहते हैं हम, उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और वो आपसे साझा करना आवश्यक है। मैं यहां पे सिर्फ इसलिए नहीं आ गया कि मुझे मैं पढ़ाई में अच्छा था, या मैं खेलकूद में अच्छा था, या मैं बोलने में अच्छा था। कारण ये होता है कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका ओवरऑल एक वातावरण, आपका संबंध, आपका लोगों से व्यवहार। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पर जब जुबान खोलते हैं तो एकदम से कुछ भी किसी को बोल दे रहे हैं। आपको बोलने का सलीका नहीं, आपको बैठने का सलीका नहीं, आपको व्यवहार करने का सलीका नहीं। ये सीखना होगा फर्स्ट ईयर से धीरे धीरे। वो लड़कपन की उम्र होती है, बचपना है। कोई आपको मैच्योरिटी का, कोई आपसे ये नहीं चाहेगा कि आप एक मैच्योर इंसान के समान बिहेव कीजिए। बिल्कुल एक विद्यार्थी के समान, 18 साल 17 साल के बच्चे के समान ही बिहेव कीजिए, पर वो गेन कीजिए, वो सीखिए आपके सीनियर से। सीनियर से सीखने लायक तो कुछ होता नहीं है पर फिर भी आप अपने टीचर से सीखिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि आप ये चीज को सीखेंगे तभी आपका आगे बढ़ने का योगदान हो पाएगा। और मैं आपसे कहूं कि आप अगर ये सीखेंगे कि आपको बोलना कैसे, बैठना कैसे और चीजें कैसी करनी है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपका जो चरित्र निर्माण है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो धीरे धीरे होने लगेगा। अब देखिए, कॉलेज चालू हो गई, अब इसके साथ ही कई सारे इवेंट चालू होंगे। आज भी कई सारे इवेंट होंगे, शायद से कल्चरल एक्टिविटीज इसके बाद होती है। कुछ बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, कोई गाना गा रहा होगा, कोई कविता सुना रहा होगा, कोई शायरी सुना रहा होगा, कोई डांस दिखा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। ये एक्स्ट्रा कोएक्युलर एक्टिविटी में उन्होंने सहभाग लिया। आप भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बैठ के भीड़ में सिर्फ ताली बजाने का काम करें। हमारा ये उद्देश्य भी होना चाहिए कि हम मंच पे और बाकी लोग ताली बजाएं। यही क्यों हमारे मन में होता है कि सिर्फ लास्ट बेंच पे अरे लास्ट बेंच पे बैठेंगे तो बैठेंगे, जब मौका आया तो स्टेज पे जाके सबसे अच्छा हम ही बोल के आएंगे, सबसे बढ़िया हम ही करके आएंगे। ये मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बैठिए, पीछे बैठिए, गपशप कीजिए, सब कीजिए, पर आपके अंदर डेवलपमेंट की भावना होनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर आपसे कहूं
कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी कॉलेज का एक बहुत अच्छा नाम डिबेट के क्षेत्र में रहा। सो मैं अपने तरफ से नहीं कहता हूं, मेरे साथ भी कई सारे विद्यार्थी गए जो मेरे साथ सहभाग लेते थे, क्योंकि डिबेट एक टीम इवेंट है, अकेला नहीं बोला जाता। पर चूंकि बैलेंस करना होता है सामने वाले को, केवल एक व्यक्ति बहुत अच्छा बोल दिया और अगले वाले ने बिल्कुल ही कुछ नहीं बोला तो टीम हार जाएगी। टीम को सपोर्ट देने के लिए सामने वाले को बैलेंस देना पड़ता है कि सामने वाला थोड़ा कुछ तो बैलेंस कर दे। वैसे ही हमारी कॉलेज की इमेज डिबेट में रिलोकेशन बनी हुई रही। लगभग इस कॉलेज के, हमारी शिवाजी साइंस कॉलेज के नाम से लगभग 150 पुरस्कार जो है पूरे नागपुर और पूरे महाराष्ट्र घूमते हुए शिवाजी साइंस कॉलेज से मैंने प्राप्त किए थे। और उसमें लगभग मैं कहूं तो 90 पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, और उसमें कैश प्राइजेस भी मिलते थे। ऐसा नहीं कि आप फ्री में करने जा रहे हैं, आपको बैठे बैठे एक कॉम्पिटिशन खेलेंगे आपको 10,000 निकलेगा, कॉम्पिटिशन खेलेंगे 5,000, कहीं से 15,000, कहीं से 21,000, कहीं कम भी होंगे। तो आपकी इनकम भी हो रही होगी अगर आप कॉम्पिटिशन में भाग ले रहे हैं तो। और साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिशन, जो बच्चे यहाँ स्पोर्ट्स वाले हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है अगर आप उसमें रैंक लाते हैं तो। अगर आप अच्छे रैंक लाते हैं, आप किसी भाग लेते हैं किसी कंपटीशन में, तो आपको जाने आने का पार्टिसिपेशन के लिए भी एक योगदान मिलता है। पर बहरहाल आपको उसमें एक उत्कृष्ट विद्यार्थी साबित होना होता है अपने आप को। एक दो कंपटीशन आप जीतिए और उसके बाद आप लगातार उसमें भाग लेते रहिए। आपको कॉलेज से पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको ट्रैवलिंग का सपोर्ट मिलेगा, आपको अनेक चीजों का सपोर्ट मिलेगा। कोटा होता है कॉलेज में, हर चीज का कोटा है। पर आप जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग है, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके बारे में, क्योंकि हमारी जो कॉलेज की मैगजीन आती है, मैगजीन देखी आप लोगों ने, अभी तो नया साल है आपका, अगर आपने ब्रोशर देखा होगा या मैगजीन देखी होगी, तो मैगजीन में ये सारी कमिटीज के नाम लिखे होते हैं। कमिटीज के माध्यम से कौन क्या डोनेट करता है, किसके माध्यम से हमें क्या मिलता है, कौन सी कमिटी से हम क्या ले सकते हैं, इस सब की जानकारी हमें से मिल जाती है। तो अगर आप उसको एक तरीके से लेंगे तो आप निसंशय आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपसे कहूं पढ़ाई से रिलेटेड कि आप जो पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप देखे होंगे कि आप पढ़ रहे हैं तो आपसे ज्यादातर प्रोफेसर्स लोग जो ये कहते होंगे, टीचर्स लोग ये कहते होंगे कि आप ऑथेंटिक बुक रेफर कीजिए, आप लाइब्रेरी जाइए, या कोई बुक्स बताते होंगे। जैसे मुझे जहां तक याद है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए यू सत्यनारायण होती थी, चक्रपाणी होती थी एक बुक करके। तो वैसे ही कई सारी बुक्स अलग अलग विषयों के लिए होती है और टीचर्स कहते हैं उसी को फॉलो अप कीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं, ये सामने तिरुपति बालाजी की दुकान है, वहां पे छोटी छोटी किताबें मिलती हैं, देखिए आप लोगों ने, तो कईयों ने ली भी होगी, वो भी कोई ऑथर के द्वारा ही लिखी हुई होती है। और ऐसे कई सारी बुक्स हैं जो हमारी कॉलेज के प्रोफेसर लोगों ने पब्लिश की है, या कई और यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर उन्होंने पब्लिश की हुई है। आप उनको देख के एक रेफरेंस ले सकते हैं, उनको पढ़ने का एक वो कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपको गाइडेंस आपके टीचर्स देते हैं कि रेफरेंस बुक को फॉलो कीजिए, वो आपको मदद करेगा। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आगे आप किसी एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, ये बुक्स आपको काम में नहीं आएगी। आपको हैबिट बैठ गई अगर आपको बड़ी बुक्स पढ़ने की, आपको रेफरेंस बुक्स पढ़ने की, तो आपको एक अच्छी गुड हैबिट बैठेगी कि आपको नॉलेज गेन करना, क्योंकि खुद के पॉइंट बनाने पड़ते हैं। बने बनाए सिल्वर स्पून में बना हुआ मटेरियल होता है वो छोटी वाली बुक्स, और वो जहां तक एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले काम आती है, मुझे जहां तक अपने अनुभव से कहता हूं मैं। पर अगर आपको लगता है कि किसी एग्जाम को आपको क्रैक करना है, किसी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको रेफरेंस बुक को फॉलो करना चाहिए। और लाइब्रेरी में ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और जहां तक मुझे लगता है लाइब्रेरी में आप लोगों ने, कितने लोगों ने दर्शन किया है कि नहीं, तो लाइब्रेरी का मालूम नहीं, हमारे डॉक्टर सर बैठे हुए हैं, हमारे लाइब्रेरियन है वो। और सर का एक तथ्य व्यवहार रहा है, लाइब्रेरी में कहीं भी आप जाइए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ आपको बुक्स चाहिए, सर से आप मदद मांगिए कि सर ये बुक चाहिए, आप बोल के रखेंगे, कुछ समय बाद वो बुक्स मंगाई भी जाती है जो लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती है। आप प्रिंसिपल सर को नोटिस लिख देते हैं, किसी को नोटिस लिखते हैं, तो कुछ समय बाद, महीने 1.5 महीने में बुक्स मंगाई भी जाती है कॉलेज में। जब नया बुक्स का स्टॉक आता है तो विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि आपको किस बुक्स की जरूरत है। पर आप जब जुड़ेंगे, आपको सारी बुक्स आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल हो सकती हैं। आप इशू कीजिए, आप पढ़िए, रेफरेंस बुक्स पढ़िए। पर रेफरेंस बुक्स पढ़ने के साथ अगर आप वो छोटी बुक्स भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी एग्जाम अभी बस दीपावली के बाद आती है। पता है कि नहीं पता है? दीपावली के बाद आती है। अब उस एग्जाम में ये होगा, अभी से बता रहा हूं क्योंकि अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं हैं। जब ये बात आपको पूरी याद आएगी, जब आप उस सिनेरियो में आएंगे, उस वातावरण में आएंगे ना, तो आपको एक एक चीज मेरी याद आ जाएगी कि जो मैंने बताई है। जब उस एग्जाम में पहुंचेंगे, तो उस एग्जाम में पहुंचने के बाद में उसके 2 दिन पहले आपको लगेगा कि क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े, क्योंकि बाकी समय कुछ पढ़ा ही नहीं है। बाकी समय तो घूम रहे फिर रहे थे और थोड़ा बहुत पढ़ा है, और एग्जाम में पहुंचे तो लिखना क्या है समझ में नहीं आ रहा। और आपको जान के आश्चर्य होगा
कि जितने बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी, और मैं अपना बोल रहा हूं मैं इसमें, क्योंकि यहाँ सब अपने ही लोग बैठे हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। अगर बाहर वाला होता तो शायद कुछ छिपाना पड़े या कुछ बोलना पड़े, बाहर वालों से छिपाया जाता है, घर परिवार में कुछ छिपाया नहीं जाता। तो आप तो मेरे घर के, मैं आपके घर का हूं, तो आपसे स्पष्ट कहता हूं, जब हमारी पहली दिन परीक्षा हुई बायोटेक की, जो नॉर्मल परीक्षा होती है हमारे टाइम पे, लगभग 120 बच्चों के इसमें से 50 से 60 बच्चे फेल हुए थे। 50 से 60 बच्चे फेल हुए थे, और सिर्फ एक विषय में नहीं हुए थे, 3-3, 4-4 में हुए थे। और क्यों हुए थे बताता हूं। पेपर कितने नंबर का होता है पता है आप लोगों को? 50 नंबर का पेपर होता है। अगर 50 नंबर के पेपर को पास करना बहुत इजी है, और उसमें टॉप करना तो और इजी है। माइक्रोबायोलॉजी में मेरे 41 रहा करते थे, 41, 40 के ऊपर ही रहे जितने बार रहे हैं, 45 के आसपास चला है मेरा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सबसे। और केमिस्ट्री में तो नंबर कटने के सवाल ही नहीं होते, केमिस्ट्री सबसे अच्छा विषय है। अगर मैं आपसे कहूँगा आप उसको पढ़ लिया तो, और आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। वो यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री की जो बुक आती है ना, जो सफेद रंग की आपने देखी होगी, सफेद पीली रंग की यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री आती है, वो आपको बहुत हेल्प करती है उस विषय के हिसाब से। अगर आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है, ये बताओ कि नहीं बताऊं कि दूसरा विषय ले लो? बताओ, नहीं बताऊं? अरे बताओ बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको जानना है, क्योंकि इनकी असली चाबी तो यही है कि परीक्षा पास कैसे की जाए। और बेटा ये बात सही बताऊंगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन हो तुम लोग, अगर जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं इसको फॉलो करोगे तो मैं बोलता हूं यहां बैठा एक बच्चा फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो रास्ते से गुजरे हुए हैं जहां मील के पत्थर दिख रहे हैं। पहली चीज ये, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़ लो, बस ही उसके सहारे मत बैठो, आप खुद की तैयारी भी करते जाइए नोट्स की, क्योंकि टीचर्स के पास टाइम लिमिट है, उनको उतने इसमें अपना काम पूरा करना है, उनके पास जो टाइम लिमिट है। आप डाउट पूछने जाइए, आप पढ़िए, खुद से सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, और उनके पास डाउट पूछने जाइए, तो आपका अच्छा प्रगति होगी। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे क्लास में जो पढ़ा दिया बस वही करना है, तो आपका नुकसान होगा। आपने बुक्स खरीदी, आपने यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री के लिए, तो यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री बेस्ट है अगर आपने किताब को उठाया है तो, और उस किताब को आपने बाय हार्ट किया है तो, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ थ्योरम्स, कुछ आपने सब पढ़ लिया तो आपके लिए बाय हार्टेड हो जाएगी वो चीज। अब आप उस चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। आपने nagpurstudy.com एक साइट होती है, जो बता रहा हूं, कुछ लिखना चाहो तो लिख भी लो साथ साथ में। nagpurstudy.com करके एक साइट होती है जहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस, क्योंकि ये लगभग ऐसा हो चुका है जहां तक मुझे लगता है मैडम कि जो इवन सेमेस्टर और सेमेस्टर कुछ यूनिवर्सिटी लेती है, कुछ कॉलेज लेती है, ऐसे चल रहा है ना। हाँ, और यूनिवर्सिटी लेती है, इवन कॉलेज लेती है। पहले हमारे टाइम में तो पूरा ही यूनिवर्सिटी के अंदर में हुआ करता था। ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो अधिकतर टाइम रिपीट में आते हैं, तो 4 साल बाद, 5 साल बाद कुछ क्वेश्चन आपको दोबारा मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो साइट पे अवेलेबल है नहीं अवेलेबल, तो नागपुर यूनिवर्सिटी की साइट है। अगर आप नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ आरटीए मेन्यू पे जाते हैं तो आरटीए मेन्यू पे भी आपको साइट पे वो पेपर मिल जाते हैं। अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो भी आप एक अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हैं। तो एक ये सब चीजें आपको एक बेनिफिशियल रहेगी आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए, पेपर को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कहूं तो उस एग्जाम हॉल में जाने के बाद जो आप पैनिक करते हैं, और कुछ अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे पूछ-पाछ के पास हो जाऊं या कुछ करके आके पास हो जाऊं, ऐसा भूल के मत कीजिएगा, आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। इस एग्जाम को पास करने का बहुत इजी तरीका है बेटा। आपने सिर्फ किताब को पढ़ा, किताब को पढ़ के आपने बस थोड़ा सा बाय हार्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए। मैं अपने उदाहरण से बोल रहा हूं, 40 के ऊपर कहीं नहीं जा रहे आपके 50 में से, पर आपने सही से उसको पढ़ा है तो बस 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन नए नए होते हैं। लगभग पुराने क्वेश्चन जो 1 नंबर क्वेश्चन उसको दोबारा कहीं तो वही घुमा के नए शब्द डाल देंगे और नए शब्द से घुमा के वो डाल देंगे। कुछ नया नहीं होता है, सिलेबस उतना ही है। सिलेबस को कंटेस्ट कीजिए, बस सिलेबस को बाय हार्ट कीजिए, जो सिलेबस है उसको फॉलो कर लीजिए, रट लीजिए सिलेबस को। रटने का काम सिर्फ सिलेबस का है, पता होना चाहिए बस इतना आने वाला है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए रदरफोर्ड मॉडल आ रहा है, बस इतना काफी है। बोस एटॉमिक मॉडल आ रहा है, इतना पता है, उसके अंदर आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया। बेल्टन शुगर पे यहाँ पे नहीं आएगा, आपको पता चल गया कि क्या उसकी एक सिनेरियो है, आपको पता चल गया मोटा मोटा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के रिलेटेड आपने क्वेश्चन बना लिए, आराम से 40 के ऊपर आप चल रहे हैं। क्यों? और इंटरनल भी मिलता है। अब मैं बता रहा हूं, इंटरनल मिलने के बाद बच्चे फेल होते हैं। आप सोचिए इंटरनल कितने, 10 नंबर की, 10 सही है ना, 20 का है, और 50 नंबर का तो पेपर होता है 50 से 60 नंबर का। बढ़ गया क्या? 80 का? हाँ, अब बढ़ गया, 80 हो गया है। हमारे टाइम 50 नंबर का पेपर हुआ करता था, और 10 नंबर शायद से इंटरनल हुआ करते थे, मुझे ध्यान है। वो 10 नंबर में इंटरनल टीचर, खास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत दयालु, सबको 10 में 10 देता है। उसमें भी किसी को 8 दे देगा, किसी को 9 दे देगा।
बाकी डिपार्टमेंट में कटते हैं आपके प्रेजेंटी के हिसाब से या कुछ हिसाब से आपको 9-8 देंगे। अब 9-8 भी सारे देते हैं, सारे डिपार्टमेंट देते हैं। जब कुछ बच्चे कुछ ज्यादा ही उद्दंड होते हैं उनको 6 या 5 मिलता है, जो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं उनको 6-5 देते हैं। अब वो 10 नंबर मिलने के बाद 50 नंबर के पेपर में, हमारे टाइम का बोल रहा हूँ, 50 नंबर के पेपर में जहां 10 नंबर इंटरनल मिल रहा है और सिर्फ 8 नंबर लेके आना है। 18 नंबर पासिंग था, 18 से 20 पासिंग था। 8 नंबर नहीं आते थे बच्चों के 50 नंबर के पेपर में, 8 और 10 नंबर। आप सोचिए क्यों नहीं आते थे। और दिन भर किताब लेके, एक नाम नहीं लूंगा सरकार जो बाहर पढ़ाते हैं कहीं पे घूमते हैं, जो कोचिंग देते हैं ना प्राइवेट वाली, ऐसे कई लोग हैं। आप कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर को छोड़ के आप बाहर पढ़ने जाते हैं जिनको कोई नॉलेज उतना नहीं होता। यहाँ जो टीचर्स बैठे हैं बहुत नॉलेजेबल हैं, अच्छे आपको गाइडेंस दे सकते हैं, पर आप उनसे गाइडेंस लेते ही नहीं। आप बाहर घूमते हैं, फीस देते हैं मोटी मोटी और उनसे जाके पूछते हैं। यहाँ पे इतने ब्रिलियंट हमारे प्रोफेसर हैं पर आप उनके पास जाते ही नहीं है और उनके पास जाके फीस देंगे और वहां सीख के आते हैं और वहां जाके इतने बड़े बड़े किताब पढ़ने के बाद उनके 8 नंबर नहीं आ रहे और हम सिर्फ इनका पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, अपना खुद का पढ़ते थे, 40 के ऊपर आ रहे। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आप जो मैं पढ़ने की स्ट्रेटेजी आपसे कहा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपको जो नोट्स बन रहे हैं वो और आपकी सेल्फ स्टडी और इन्हीं टीचर से जो आपके पढ़ा रहे हैं उनके पास जाओ, आपके डाउट क्लियर करो और जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए। जो अब 80 नंबर का पेपर हो चुका है तो 80 नंबर के पेपर में कुछ 1 नंबर वाले भी आते होंगे, आते हैं नहीं आते हुए? आते हैं। 1 नंबर के भी होंगे, कुछ 3 नंबर का होगा, कुछ 4 नंबर का होगा, कुछ 5 नंबर, कुछ 10 नंबर वाले क्वेश्चन। पहले हमारे टाइम पे 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे मैडम, 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आया करते थे। उसके बाद 10 नंबर के वो एक छोटे छोटे 8 नंबर क्वेश्चन आया करते थे। और लिखने के लिए भी साइंस का सब्जेक्ट है तो कम से कम 10 पन्ने लिखना पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी का ऐसा नियम हमको सिखाया गया था, फेंको जैसे आए जैसे लिखना है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था। केमिस्ट्री में तो ऐसा कि जितने से जितना है उतना लिखना पड़ेगा, काम से काम लिखोगे तो नंबर मिलेगा। केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, इसमें काम से काम लिखोगे तो नंबर मिलेगा, बकवास फेंकी तो पूरा जीरो। पर साइंस में कुछ जो विषय, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन विषय में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत फेंक दीजिए तो भी काम चलता है। तो सही फेंकिए, उल्टा सीधा गाना लिख के आ गए उसमें कि फूलों से प्यारी तुम, बागों से न्यारी तुम, फिर तो हो गया। तो ये सब नहीं करिए, फेंकना भी है थोड़ा व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि टीचर पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं है कि बस देख लिया हाँ क्या लिखा क्या लिखा क्या लिखा, काम नहीं चलता। 10 नंबर का एक आंसर हुआ करता था, 10 नंबर के उसमें आपको कैसे मेंटेन करना। अभी भी 10 नंबर क्वेश्चन अगर होंगे 8 नंबर के तो आपको पता होगा कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए। अगर 3 नंबर क्वेश्चन आप बना रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आप बना रहे हैं, कितने 2 से 4 पन्ने में आपका काम हो जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कम से कम 2 पन्ना तो लिखिए, 2.5 पन्ना तो लिखिए और उसमें आप एग्जाम्पल दीजिए, एक अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल्स आप नहीं दे रहे हैं, आप उसमें एग्जाम्पल्स ना देने पे ही आपके 2 नंबर कट जाते हैं, 1-2 नंबर तो एग्जाम्पल ना देने पे कटते हैं। अच्छे एग्जाम्पल दीजिए, सटीक एग्जाम्पल दीजिए, डे टू डे लाइफ में उसको कोरिलेट कीजिए। जो आप पढ़ते हैं उसको बाहर मत ढूंढिए कि अमेरिका में क्या हो रहा है, फिर फले में क्या हो रहा है, उसको कोरिलेट कीजिए कि मेरे डे टू डे लाइफ में क्या है। आपसे बोला जा रहा है कि किसी केमिकल्स की आपकी बात की, अगर कोई बच्चे से कह दिया कि पोटेशियम कहाँ इस्तेमाल होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तो लगे ढूंढने की, अरे ये तो यहाँ थोड़ा कोशिश कीजिए आपके आसपास भी इस्तेमाल होता होगा, कहीं इस्तेमाल होता होगा। डे टू डे लाइफ में आप तो कोरिलेट करेंगे साइंस के विषयों को, आप बहुत अच्छे जान पाएंगे। आप फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को, बायोटेक्नोलॉजी को डे टू डे लाइफ में देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे। नहीं तो उब जाओगे भाई साहब। ये विषय ऐसे हैं कि आपको उबा भी सकते हैं, अच्छे से उबा देंगे और उबाने के बाद पूरा ध्यान निकल जाता है और एक स्थिति बनती है। बेटा मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि इसी स्टेज से निकला हूं, बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे, ध्यान देना ये स्थिति है। यहां से गांव से कितने लोग आए हैं, बाहर से गांव से कितने लोग हैं जो सिटी से नहीं है? अरे बढ़ के हाथ ऊपर करो, भारत की रीढ़ की हड्डी है गांव, हाथ ऊपर करो, गांव से आए हैं। और नागपुर वाले कितने हैं? अरे आज नागपुर वाले कितने हैं? देखिए आप लोग एक बात को समझ जाइए कि कॉलेज की सराउंडिंग बहुत अच्छी है हमारी। मैं आपको कॉलेज, कुछ कॉलेज के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सारी लगभग कॉलेज घूम चुका हूं नागपुर की, और कुछ कॉलेज जो बहुत नामचीन हुआ करती हैं, जो सिविल लाइन्स में हुआ करती हैं, आप समझ जाइए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाजू में हुआ करती हैं, उस साइड हुआ करती हैं और बड़ी नामचीन हुआ करती हैं। आप जानते होंगे उसको, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, लाल रंग की बिल्डिंग के समान उनकी बिल्डिंग है, आप समझ रहे होंगे, समझ गए ना, मैं नाम नहीं लेता। आप ऐसी कई कॉलेजेस को आप देखिए, आपको पता चलेगा। मैंने आंखों देखी बता रहा हूं। कॉलेज के बाहर हम लोग डिबेट फील्ड के बाहर नींबू शरबत पीने के लिए गए थे, गर्मी का दिन था, अप्रैल का। बाहर प्रोफेसर लोग बच्चे के साथ चीयर्स, किस चीज का चीयर्स? तो बियर, साथ में छुट्टा फूक रहे हैं, बीड़ी फूक रहे हैं। ये क्या है? ये सराउंडिंग क्या सिखा रही है? ये क्या नागपुर का जेएनयू बना रहे हो इसको?
जेएनयू में यही होता है साहब, जेएनयू जाइए, हम लोग गए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जाइए, जेएनयू जाइए, जेएनयू की और डीयू की स्थिति ऐसी है कि वहां पे टीचर जो वहां के प्रोफेसर है वो बोलते हैं हमको सर मत बोलो। पता है आपको, आज जेएनयू की स्थिति ऐसी है कि मेरे फ्रेंड्स वहां पढ़ रहे हैं जो हमारे साथ के थे, मैं खुद वहां गया हूं, अपने टीचर्स को नाम लेके बुलाते हैं और वहां के टीचर्स बोलते हैं कि हमको सर मत बोलिए, मैडम मत बोलिए, नाम लेके बुलाया जा रहा है। अगर आप वहां का आज का रिचुअल देखेंगे कुछ जगहों पे तो आप समझिए आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जहां पे आज भी आपको थोड़ी रोक टोक है, लगाम है। क्यों है? क्योंकि आपके अंदर मर्यादा चाह रहे हैं, आप एक अच्छा स्टूडेंट बनाना चाह रहे हैं। नहीं तो आप बाहर घूमिए ना, ड्रेस कोड होता है, कई कॉलेज ऐसे मिलेंगे जहां आपको ड्रेस कोड भी नहीं होगा। यहाँ पे शायद गुरुवार को मत छोड़ते हैं ना, नॉर्मल कपड़े पहन के आ सकते हैं, गुरुवार की गुरुवार के दिन आप नॉर्मल कपड़ों में आ सकते हैं, बाकी दिन ड्रेसअप चाहिए आपको, आपका यूनिफॉर्म चाहिए। कई कॉलेजेस जहां पे यूनिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है, आप लगे आराम से जो आपके मन में आ रहा है, जो मन में। अरे मैंने ऐसे ऐसे हाल देखा है बेटा, आप लोग भाइयों बहनों, मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां पे आप देख के बिल्कुल हरकत हो जाएंगे आपको बिल्कुल। पर आज जिस कॉलेज में आप बैठे हैं वहां पे सही में पढ़ाई का एक सेक्टर है, वहां सही में एजुकेशन की जगह है। नहीं तो जहां जिनको एजुकेशन नहीं लेना, उस कॉलेज में भी, जिन कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं वहां पे भी पढ़ाई का अच्छा स्कोर है, अच्छा उनका ग्रेड है, अच्छा सिनेरियो है, वहां से भी अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आते हैं। नामचीन कॉलेज है वो भी, उनके स्टूडेंट के कारण, जो इस चकल्लस में नहीं पढ़ते, इस बेकार की चीजों में नहीं पढ़ते। और मैं आपसे कहूंगा इस कॉलेज के अंदर कुछ भी ऐसी चीज आपको नहीं दिखेगी, पर जो बाहरी तत्व आपको पकड़ेंगे। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, और जो समझ रहे हैं सीनियर जो आपके साथ के होंगे समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं बता रहा हूं। बाहर के जो लोग होंगे वो आपको जुड़ने का प्रयास करेंगे। बाहर आप नाश्ता पानी करने जाएंगे, कहीं चाय नाश्ता हो रहा है, कुछ हो रहा है, भीड़ टपरियां देखें सब जगह, आप भटकेंगे, आपको कई चीजें बताने वाले लोग मिलेंगे, आपको अच्छी भी बताने वाले मिलेंगे, बुरी बताने वाले मिलेंगे। और मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा बेटा कि किसी कीमत पे कोई ऐसी चीज का सेवन करना चालू मत कीजिएगा जो आपका भविष्य बर्बाद कर दे, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत सहजता में उपलब्ध हो रही है। ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऐसा वातावरण बना है। और आज हमारे पुलिस कमिश्नर के, अगर आपने 2 दिन पहले वक्तव्य सुना होगा, उनका लाइव चल रहा था उस बारे में, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा गाइडेंस दिया है। इसको रोकने का भरपूर प्रयास चल रहा है, पर कहां से जड़े उग जा रहा है और हमारे युवा जनरेशन के अंदर प्रवेश कर रहा है पता नहीं चलता। आप उससे बचिए, आप गलत हैबिट से बचिए। कई सारे आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, बोलेंगे अरे यार अपना काम चलता तो वो भी काम कर ले साथ में, तेरा कुछ पॉकेट मनी निकल जाएगी, ये तो कर मेरे साथ, तू भी तो चल वहां पे, तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तेरा कुछ ये हो जाएगा, अरे वो अपने पहचान के, वो तो एग्जाम में पास करवा देंगे, उनको पैसे दे, वो तो कोई नहीं करवा सकता। इस बात को ध्यान देना। कई ऐसे मिलेंगे, बोलेंगे 5,000 रुपए 10,000 रुपए मिलते हैं, बता रहा हूं मैं आपको बात, अभी ये दे तो पास करा दें एग्जाम में, कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसे की ठगी है, आपको गलत हैबिट में लगाने की ठगी है। इनसे बचिए, ये ठग घूमते हैं, हर कॉलेज के बाहर घूमते हैं, और टीचर्स को कम मालूम होता है इस बारे में, क्योंकि हम आप ही के बीच के समझने का मालूम है। और हमने अपने साथ वाले विद्यार्थियों को समझाया, अपने दोस्तों को रोका है काम करने के लिए, किसने कभी मत उतरना, ये ठगों की गैंग है। और यहां तक कि उनकी अच्छी कुटाई भी करवाई है, क्योंकि हम लोग उसमें लीडरशिप में समझ रहे हैं कि ये सब काम नहीं चलने देंगे कॉलेज में। ये सब चीजें पूरी बकवास है बेटा, ये सब चीजें आपको बरगलाने के लिए, ये ड्रग्स, ये ड्रिंकिंग, ये स्मोकिंग, ये सब चीजें आपको बिगाड़ने का पहला चरण होता है। और किसी को लत नहीं होती, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता, ये साथ वाले ही सिखाते हैं, और साथ वाले किसी बाहर वाले सीख के आते हैं। इससे बचना है, एक कारण मैंने आपको इसका बताया, इस यहां रहते हुए। और मैं कहूंगा ये प्रीमाइसेस इससे बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, इसके अंदर ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती। कुछ जगहों का जिनका मैंने नाम लिया, उसके अलावा मैंने जगहों का नाम लिया, वहां ये खुलेआम होता है और आप उसको रोक नहीं पाएंगे, कोई टीचर नहीं रोकते हैं। यहां क्या रोकेंगे? यहां आपको रोकने के लिए आपके टीचर्स हैं, जैसे माँ बाप घर में रोकते हैं, वैसे यहां पे रोकने टोकने वाले टीचर्स आपको अवेलेबल हैं, तो आपका एक गाइडेंस होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि जितनी लोग यहां बैठे हैं, इस बात को आप स्वीकार कीजिए कि आपको किस प्रकार से उस गाइडेंस को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने कई सारी एक्टिविटीज में भाग लिया था, मैंने इस कॉलेज से कई सारी चीजें प्राप्त की, इस कॉलेज से आप भी वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने मेहनत करी तो। बहरहाल आप एक उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को आगे लेके जा रहा हूं। आप सभी यहां पे पढ़ने आए हैं ना, कि नहीं आए हैं? अरे मुंह से आवाज तो निकालो, अभी कल्चरल प्रोग्राम में तो जोर से निकलेगी। पढ़ने आए कि नहीं आए हैं? अरे जोर से बोलो। हाँ जी, हाँ जी, तो पढ़ने आए हैं आप लोग। अब पढ़ने कैसे आए हैं? बस यहाँ पे आपको पता है कि बैग में 2 किताब पड़ी होगी, रजिस्टर पड़ा होगा, उसमें कोई तो बैग भी नहीं लेके आए होंगे, जो खाली हाथ आए हैं। जो बोलते हैं बैग ले जाने की क्या जरूरत है, मोबाइल में नोट बना देंगे, और नोट बनाने की जरूरत क्या है, एक दोस्त बनाकर रखेंगे लिखता है,
लाई तेरी कॉपी PDF कि सबको गई हो। तो ऐसे ही काम होते हैं। तो बेटा उससे बचिए और अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेन रखिए, नहीं तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के चक्कर में 10 नंबर 5 नंबर कट जाएंगे। तो वो भी ध्यान रखना है आपको। बहरहाल आपको इस साथ में आपको लेके जा रहा हूं मैं बात की कि आप सब यहां पढ़ने आए हैं, मतलब आप एक साधक हैं। क्या है? साधक। हिंदी में, संस्कृत में एक शब्द होता है साधक। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो है आपकी साधना। साधना का मतलब होता है जिसको आप साध रहे हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप तपस्या करके धारण करना चाहते हैं, वो होती है साधना। और आप हैं साधक। और आप जानते हैं सबसे कठिन साधना किसकी थी? साधक कौन बना था? तो बता सकता है? गौतम बुद्ध ने साधना की थी। क्या पाया था उन्होंने? एनलाइटमेंट बोल रहे हैं, बोधिसत्व प्राप्त किया था। कहां प्राप्त किया था? बोल गया पीपल के वृक्ष के नीचे। उन्होंने प्राप्त कहां से किया? बाहर घूम के? वो अंदर आए। कहां आए? हम बाहरी संस्कृति, पूरा यूरोपियन स्टेट, पूरा जहां से आप पूरा पश्चिम देखेंगे वो आपको मटेरियल वर्ल्ड में लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? और इंडिया ऐसा एक देश है इकलौता जो आपको कहता है इस मटेरियल से स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर प्रवेश कीजिए, क्योंकि सारा ज्ञान आपके अंदर है। बाहर घूमोगे तो राजा सिद्धार्थ बनोगे और अंदर उतरोगे तो तथागत गौतम बुद्ध बनोगे। ये अंदर उतरने को। अंदर उतरोगे तो राम बनोगे और बाहर उतरोगे तो रावण बनोगे। अंदर उतरोगे तो APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद बनोगे और बाहर उतरोगे तो आतंकवादियों की श्रेणी में भी कई सारे साइंस पढ़े हुए लोग रहे हैं। ओसामा बिन लादेन अच्छा इंजीनियर ही था, अगर आप जानते होंगे इस बात को। ये विज्ञान का ही एक लेन देन है कि आप पढ़ के किस तरीके से एम्प्लॉय करते हैं। आपकी शिक्षा आपकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर निर्भर करती है। पर बहरहाल मैं आपको उदाहरण दे रहा था इस बात का कि जिन्होंने इस साधना को प्राप्त किया, तो आपको उस उदाहरण के साथ शुरुआत करूं। आप सबने किसी ने सुंदरकांड का नाम सुना है? नाम सुना है? क्या होता है सुंदरकांड? सुंदर होता है? किसका पाठ है? रामचरितमानस का पाठ है, रामायण का भी पाठ है। रामायण के 5वें कांड को बोलते हैं सुंदरकांड। द 5th चैप्टर ऑफ रामायण इज कॉल्ड सुंदरकांड। पहला है बालकांड, फिर आता है अरण्यकांड, फिर आता है अयोध्याकांड। नहीं, पहले बालकांड, फिर अयोध्याकांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधाकांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंकाकांड, फिर उत्तरकांड। ऐसे 7 कांड होते हैं। 7 चैप्टर है रामायण के। उसमें 5वां चैप्टर है सुंदरकांड और बहुत खास है, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं। वो आपसे रिलेट करके शेयर कर रहा हूं। सुंदरकांड की खासियत क्या जानते हैं? कौन है उसमें? हीरो कौन है उसके? हनुमान जी, बजरंगबली। और ये हनुमान जी साधक है साहब। ये डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति हैं और ये एकदम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। और सुंदरकांड की शुरुआत होती है जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय पिधाए। यानी हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले हुए हैं। पता है हनुमान जी को श्राप लगा था, सूरज को निकला, तो उसके बाद से कहानी है कि वो अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। और जामवंत उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अतुलित फलधामम हेम शैलावदेहम दंडतरण कुशाणम ज्ञान नामक्रगण्यम सखल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति विभक्तम बात जातम नमामि। कि आपके अंदर अतुलित बल है, आप एनिशियंट पावर के, बहुत ज्यादा पावर के आप एक भंडार हैं। पर हनुमान जी खुद को नहीं पता, और वही आप लोग हैं। आपके अंदर वही एनर्जी है, क्योंकि आपके अंदर बैठी वही एक ऊर्जा, वो एनर्जी, आपका ब्रेन भी वही है, पर आप उसको इफेक्ट नहीं देते क्योंकि आपको जागृत ही नहीं करते। आपके अंदर बैठी वह आत्मा भी, आपके अंदर बैठी वो ऊर्जा भी, आपके अंदर बैठी वो चेतना भी, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, ऊंचा हो नीचा हो, कहीं गरीब हो अमीर हो, सबके अंदर वही ऊर्जा विद्यमान है। पर वो ऊर्जा को इनिशिएट करना होगा, उसको उसकी इनिशियल एनर्जी देनी होगी, जिसको एनर्जी मिलने के बाद ही वो आगे बढ़ पाएगा। और वो हनुमान जी के पास भी गायब हो चुकी थी। उनको समुद्र पार करना था। क्या पार करना था? समुद्र। और वो समुद्र पार करने के लिए उनको चाहिए थी एनर्जी, और वो भूले हुए थे कि मेरे पास सारे पावर्स हैं। और वैसे ही आपके अंदर सारे पावर्स अवेलेबल हैं कि आप बड़ी से बड़ी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप लाइफ में अच्छे से अच्छी चीजों को अचीव कर सकते हैं। पर आप उस पावर को भूले बैठे हैं। क्यों भूले बैठे हैं? क्योंकि आपको याद दिलाने वाला नहीं है। अगर आपको याद दिलाया जाए तो आप उस पावर को गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं हनुमान जी को पावर किसने याद दिलाई? जामवंत जी ने। और याद दिलाई और कहा आप अतुलित बलधाम हैं। और समझ जाइए कि मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपके अंदर वही पावर है जो हनुमान जी के अंदर है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके अंदर वही तत्व विद्यमान है। कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। अगर छोटा बड़ा होगा तो उसने गलत किया है।
सब एक समान है, सबके अंदर वही ताकत दी है, ना लड़की कमजोर है ना लड़का मजबूत है, सब एक बराबर है, सबके अंदर एक ही चेतना दी है उस ईश्वर ने। चाहे आप उसको राम के नाम में पूजो कि कृष्ण के नाम में पूजो कि बुद्ध के नाम पे पूजो, चाहे ईसा मसीह के नाम पे पूजो, चाहे अल्लाह के नाम पे पूजो, किसी के नाम पे पूजो, वो आपको एक ही ताकत देता है, पर आप उसको भूले बैठे हैं। अब याद दिलाया किसी ने आपको कि एनर्जी चाहिए, आपने एनर्जी गेन करी और एक छलांग मारनी है समुद्र को पार करने के लिए। समुद्र क्या है? आपके अंदर की खामी, आपको जो डर लग रहा है। आप खुद हनुमान है, यानी आप एक साधक है, हनुमान जी यहाँ साधक हैं, आप भी साधना कर रहे हैं, और वो समुद्र क्या है? आपका डर, जिसको आपको देख के लगता है मैं एग्जाम नहीं कर पाऊंगा, मैं डिग्री नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको क्रैक नहीं कर पाऊंगा, ये डर ही वो समुद्र है। और जब उस समुद्र को आप पार करने के लिए छलांग लगाते हैं तो जगाने वाले आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके मोटिवेटर्स हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग हो सकती है, और जब उसको छलांग लगाते हैं आप उस डर को पार करके वो सक्सेस की यात्रा के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं। तो पता है हनुमान जी को सबसे पहले कौन मिला? वे समुद्र पार उड़े हैं तो पहले कौन मिला? मैनाक पर्वत। कौन मिला? जैसे उड़े मैनाक बोलता है हनुमान जी आप इतना लंबा सफर तय करने जा रहे हैं, भाई साहब आप बैठ जाइए, थोड़े आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। जैसे आप पढ़ने के लिए किताब खोले, आज तो बहुत मोटिवेट होकर आया हूं, आज तो 2 चैप्टर खत्म करना ही करना है, करना ही करना है, बस फोन बंद, नोटिफिकेशन बंद, और थोड़ी देर के बाद दिखा फोन चमका ऐसे, अरे 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेते हैं, फिर देखे अरे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब आ गया, करते करते 2 घंटे बीत गए। ये वही मैनाक पर्वत है जो आपको बोल रहा है रेस्ट कर लीजिए, और आप रेस्ट करने अगर रुक गए तो आपका राम काज यानी आपकी सक्सेस की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। इसको रोकना पड़ेगा। हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। राम का काज किए बिना मेरे को विश्राम होने वाला नहीं, मैं कैसे आराम कर लूं? और आपका काम पूरा नहीं हुआ, आपने नोटिफिकेशन देखा, आप आराम करने बैठ गए तो आप हार गए। आपको यही जवाब देना है उस फोन को, आपके दोस्तों को जो आपको कॉल कर रहे हैं कि अभी मेरा काम होने का है, सिलेबस काम कीजिए बिनु मोहि कहां विश्राम, कि सिलेबस पूरा किए बिना मेरे को कहां विश्राम। और आप उस यात्रा को और आगे बढ़ाइए। आप आगे बढ़े तो मैनाक छूट गया, थोड़ा आगे गए तो सुरसा मिली हनुमान जी को। सुरसा नाम राक्षसी का, यानी सुरसा नाम की राक्षसी मिली जो सांप के समान है और जिसके बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारे मुंह हैं। अब ये सुरसा जो है हनुमान जी को बोलती है मैं तुझे खाना चाहती हूं, मैं तुझे खाना चाहती हूं। ये कौन है साहब जो आपको बोल रहा है कि मैं तुझे खाना चाहती हूं? ये आपके ही साथ की आपकी बैड हैबिट्स है जो आपको कहती है कहीं घूमने चल लो, आज मूवी देख लेते हैं, आज कुछ ये कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं, किसी डेटिंग ऐप पे घूम के आते हैं, कहीं इस पे घूम के आते हैं, कहीं इस पे घूम के आते हैं। ये सब करवाने वाला कौन है? कोई ड्रग्स की हैबिट, कोई स्मोकिंग की हैबिट, कोई इसकी हैबिट कराने वाला कौन है? यही सुरसा है जो आपको बोलेगी कि अरे पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, आपको यात्रा करने में क्या रखा, रुक जाओ। और अगर आप उसके सामने अकड़ के खड़े हो गए कि नहीं मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं, मेरे को ये करना ही नहीं है, तो जो आपके साथ वाले लोग रहेंगे आपके आसपास के, वो तो ये बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत घमंडी है, हमारे साथ उठता बैठता। ऐसे ही होता है ना, जब आपके साथ वाले कुछ काम करने लगे और आप बोले कि मैं तो ये नहीं करती, नहीं मैं नहीं करती, मैं नहीं करता, ये तो अपना साथी नहीं देती, इससे बात नहीं करना, इसको अलग कर दो। ये व्यवहार होता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? हनुमान जी सुरसा के सामने पहले बड़े हुए, 16 जोजन रूप कपित धरहूं तुरंत कपिल से 32 भय। हनुमान जी धीरे धीरे अपना शरीर बढ़ाने लगे तो वैसे वैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाने लगी। जितने बड़े हनुमान जी हो उतने बड़े सुरसा हो जाती है। तो जितने आप इन प्रॉब्लम से बचने का प्रयास करेंगे उतनी ही बड़ी वो प्रॉब्लम का मुंह बड़ा हो जाएगा। आप उसको ओवरकम नहीं कर सकते, इस बात को समझ जाइए, बता रहा हूं जो आपको। उससे जीतने का एक ही तरीका है, जैसे ही सुरसा ने 16 जोजन में तुरंत अपने से 32 हो सत जोजन ते ही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे ही 100 योजन का मुंह फाड़ा सुरसा ने, हनुमान जी मच्छर के समान छोटे हो गए। जब ये बहुत आपके सामने प्रबल हो जाए ना तो आप ये मत बोलिए अरे मैं नहीं करती, अरे मेरी हैसियत ही नहीं करने की, आप बड़े लोग, आप हम मेरे से नहीं होता। अपने आप को छोटा बनाइए। जो प्रॉब्लम्स के सामने आप पता है जिससे डील नहीं हो पा रहा, उसके सामने छोटे होकर निकल जाइए। हर जगह अड़ना, हर जगह लड़ना भी आवश्यक नहीं है, हर किसी के मुंह लगना भी आवश्यक नहीं है। कई जगह निगलेक्ट करके टालना आना चाहिए। कोई आपको उकसाएगा कि ये बोले, आपको 2-4 लोग घेरेंगे और बोलेंगे इसके मुंह से आगे बुलवाना ही है, फिर बोलेंगे जाके कि अरे ये तो ऐसे बोलती है, ये तो ऐसा बोलता है, घेरेंगे, यही काम, और वहां छोटे हो जाना है। अरे हम तो आमिला हैं, हम आपको जाने दो, और हम निकल जाएंगे। और वहां से निकले हनुमान जी तो सुरसा से बच गए।